হরিবল। সবাইকে আজকের এই ভাগবতম ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি। তো আমাদের আজকে সৌভাগ্য আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন শ্রীপাদ অন্তর্দ্বীপ দাস ব্রহ্মচারী প্রভু। তো প্রভুর যে গুণগান, আসলে বৈষ্ণবের গুণগান করা এটা আমার পক্ষে অসম্ভব। তবুও আমি প্রভুর বিষয়ে সামান্য যতটুকু জানি যে প্রভু যে শ্রীপাদ রাধেশ্যাম প্রভুর যে সেকেন্ড ইন কমান্ড, অর্থাৎ প্রভুর ডান হাত হিসেবে প্রভু সবসময় সেবা করা যাচ্ছে সারা ভারতবর্ষে তথা ভারতবর্ষের বাইরেও। প্রভু মনে হয় বাংলাদেশে প্রথমবার এসেছে। তার ধারাবাহিকতায় আজকে প্রায় এক সপ্তাহ যাবৎ প্রভু আমাদের ইস্কন ইয়ুথপুরাম যে চট্টগ্রামের নয়, সারা বাংলাদেশের ম্যাক্সিমাম লিডাররা আমাদের সিসিবন্ধুতে এসেছেন এবং প্রভু প্রায় এক সপ্তাহ যাবৎ খুব সুন্দর উৎসাহপূর্ণ যে ক্লাস প্রদান করছেন। তো আমরা প্রভুর যাতে কৃষ্ণ ভক্তি প্রচারে ওনার আরও দীর্ঘদিন আমাদের মাঝে কৃষ্ণ ভক্তি প্রচার করতে পারেন, শিল প্রভুপাদের এবং গুরুদেবের প্রচারে সহযোগিতা করতে পারেন। সেই জন্য আমরা সকলেই প্রভুর সুস্বাস্থ্য কামনা করে আমরা তিনবার হরিনাম বলব সকলে। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 प्रभु की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। ये मेरा सौभाग्य है कि आप सबने मुझे अपने दास की तरह स्वीकार किया है और हमारे को कुछ भागवतम के सुंदर इस अध्याय के बारे में चर्चा करने के लिए मुझे अवसर मिला है। वास्तविकता में हमारी कोई योग्यता नहीं है, जो भी हमने गुरुजनों से सुना है उसको दोहरा के अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए और भगवान श्री राधा माधव जगन्नाथ सुंदर भगवताई और आप सब वैष्णवों की खुशी के लिए हम यहाँ पर कुछ चर्चा करेंगे। आइए हम श्रीमद् भागवतम 8वें स्कंद 22वें अध्याय के 32वें श्लोक का चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। तावत् सुकलम् अध्यास्तां विश्वकर्मा विनिर्मितं यत् आधयो व्याधयश्च क्लमस्तन्द्रा पराभवा नोपसर्गाणि वसतां सम्भवन्ति ममेक्षया तावत् सुकलमध्यास्तां विश्वकर्मा विनिर्मितं यत् आधयो व्याधयश्च क्लमस्तन्द्रा पराभवा नोपसर्गाणि वसतां सम्भवन्ति ममेक्षया तावत् सुतलमध्यस्तां विश्वकर्मा विनिर्मितं यत् आधयो व्याधयश्च क्लमस्तन्द्रा पराभवा नोपसर्गाणि वसतां सम्भवन्ति ममेक्षया विश्वकर्मा निर्मितं संभवन्ति मोक्षया
विश्वकर्मा विनिर्मितं लमस्तंगा पराभवः नवसर्गा निवसतं तावस्तलान्तस्तां विश्वकर्मा विनिर्मितं तारयोदयश्च लमस्तंगा पराभवः वैष्णवीज माता तावसुतला मध्यस्थां विश्वकर्मा विनिर्मितं लमस्तंद्रा पराभवः नवसर्गा निवसतां संभवन्ति ममक्षया। मुझे बंगाली में पढ़ेंगे शब्दार्थ হ্যাঁ তাবৎ যতক্ষণ পর্যন্ত না ইন্দ্রের পথ প্রাপ্ত হচ্ছে সুতল লোকে অধ্যস্তাম সে স্থান অধিকার করে সেখানে বাস করো বিশ্বকর্মা বিনির্মিতম বিশ্বকর্মার দ্বারা বিশেষভাবে নির্মিত যৎ সেখানে আদায় মানসিক ক্লেশ বেদয় দৈহিক ক্লেশ চ ও ক্লম ক্লান্তি তন্দ্রা আলস্য পরাভবঃ পরাজিত হয়ে না উপসর্গ অন্যান্য উপদ্রবের লক্ষণ নিবসতাম যারা সেখানে বাস করে সংভবন্তি সম্ভব হয় মম আমার ইয়ক্ষয়া বিশেষ পর্যবেক্ষণের ধারা। অনুবাদ সেই ইন্দ্রপদ প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত বলি মহারাজ বিশ্বকর্মা বিরচিত সুতল লোকে বাস করবে। সে স্থান যেহেতু আমার দ্বারা বিশেষভাবে সংরক্ষিত তাই সেখানে মানসিক ক্লেশ দৈহিক ক্লেশ ক্লান্তি তন্দ্রা পরাজয় প্রভৃতি উপদ্রব নেই। বলি মহারাজ এখন তুমি সেখানে গিয়ে শান্তিতে বাস করো। তাৎপর্য করেছেন জগৎগুরু শ্রী প্রপাত। প্রপাত কি? বিশ্বকর্মা হচ্ছেন স্বর্গলোকের বিশাল অট্টালিকাগুলির কারিগর। অতএব বিশ্বকর্মা যেহেতু বলি মহারাজের বসবাসের জন্য সুতল লোকের অট্টালিকা এবং প্রাসাদগুলি নির্মাণ করেছিলেন তাই সেগুলি অন্ততপক্ষে স্বর্গলোকের প্রাসাদগুলির সমতুল্য। সে স্থানের অন্য আরেকটি সুবিধা ছিল যে সেখানে কোনো প্রকার বাহ্য বিপত্তি ছিল না, অধিকন্তু সেখানে মানসিক ও দৈহিক ক্লেশও ছিল না। এগুলি সুতল লোকের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। সেখানে বলি মহারাজকে থাকতে দেওয়া হয়েছিল। বৈদিক শাস্ত্রে আমরা বিভিন্ন গ্রহলোকের বর্ণনা পাই যেখানে এই পৃথিবীর প্রাসাদগুলো থেকে শত সহস্র গুণ শ্রেষ্ঠ বহু প্রাসাদ রয়েছে। যখন আমরা প্রাসাদের কথা বলি তখন স্বাভাবিকভাবেই বিশাল নগরী এবং শহরের ধারণা আসে। দুর্ভাগ্যবশত আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা যখন অন্যান্য গ্রহলোকে যাওয়ার চেষ্টা করে তখন তারা পাথর এবং বালি ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় না। তারা তাদের তুচ্ছ অভিযান চালিয়ে যেতে পারে, কিন্তু বৈদিক শাস্ত্রের পাঠক কখনো তাদের কথায় বিশ্বাস করবে না। অতএব
তাদের অন্যান্য গ্রহে যাওয়ার কৃতিত্ব প্রদান করবেন না। জয় শ্রী প্রভুপাদ কি। हरे कृष्णा। तो मुझे बंगाली नहीं आती है, तो हिंदी में बोलेंगे चलेगा? सबको समझ आता है? धन्यवाद। फिर बहुत ही सुंदर प्रसंग है। बलि महाराज की जो कथा आती है, बलि कभी कभी हम बोलते बलिदान, है ना? बलिदान, दान बलि जैसा, दान दान हो तो बलि जैसा, बलिदान। तो बलि महाराज अपना पूरा जीवन भगवान के लिए न्यौछावर किए, और जीवन ही नहीं, अपने पूरे जो अहंकार है उसको न्यौछावर कर दिया उन्होंने। वो पूरे तीनों लोगों के राजा थे, त्रिलोकपति थे, लेकिन भगवान वामन देव के रूप में आके बोले कि मुझे 3 कदम पे 3 कदम जमीन चाहिए। और बलि महाराज हंस पड़े, क्या 3 कदम मांग रहे हो हमसे? हम त्रिलोकपति रहे, आप 3 कदम मांग रहे हो? छोटे बच्चे जैसी बातें कर रहे हो। तो भगवान ने बड़ा उपदेश दिया कि जो संतुष्ट नहीं होता 3 कदम से, वो तीनों लोगों से भी संतुष्ट नहीं हो सकता। तो बड़ा बड़ा उपदेश तो दिया, लेकिन बाद में तीनों लोगों को ले लिया। तो भगवान ऐसे बलि की परीक्षा लेते हैं। तो भगवान ने एक ही चरण के अंदर पूरे ऊपर के लोगों को, और एक ही चरण में नीचे और बीच के लोगों को सबको नाप दिया, और फिर तीसरे कदम के लिए बोले अभी कहाँ रखूँ? तुम्हारे पास तीसरा कदम रखने के लिए कुछ नहीं बचा है, तो तुम्हें बंदी बना दिया जाएगा। जो एक क्षण पहले त्रिलोकपति हो, उसको अगर उसी के राज दरबार में बंदी बनाया जाए तो क्या उसका अपमान किया जा रहा है, सोच सकते हैं। सारे लोग, मंत्रीगण, सारे परिवारगण सब वहीं पे खड़े हैं, और उनके सामने उनको बंदी बना दिया गया भगवान के द्वारा, और बोले कि तुमने अभी तक, जब तक तुम तीसरा कदम के लिए कुछ जगह नहीं दोगे तो तब तक तुम्हें रिहा नहीं किया जा सकता। तो बलि महाराज ये नहीं बोला कि क्या भगवान, ये क्या आप पहले बड़ा बड़ा उपदेश दे रहे थे कि 3 कदम में जो संतुष्ट नहीं होता। हाँ? उन्होंने कुछ उस समय ऐसे भगवान के साथ झगड़ा नहीं किया, वो तो भगवान की शरण लेने आए थे। ये भक्त का एक लक्षण होता है, वो भगवान से कुछ चाहता नहीं है, भगवान से कुछ भी अपेक्षा नहीं करता है, और जस्टिस भी नहीं, जस्टिस को क्या बोलते हैं, जैसे विचार, न्याय नहीं चाहता है भगवान से। मैंने इतना किया तो मेरे साथ न्याय होना चाहिए, ये क्या, ये तो अन्याय हो रहा है ना? भगवान ने अन्याय किया एक्चुअली, भगवान ने उसके साथ छल किया। भगवान खुद ही बताते हैं मैंने छल किया। तो भगवान छल करते हैं, लेकिन उस छल को भी भक्त भक्ति भाव से ले जाता है। तो भगवान के छल में भी भक्त अपना आश्रय ढूंढता है, तो भगवान से आश्रय की इच्छा रखता है भक्त। छल के लिए न्याय नहीं चाहता है कि अगर तुमने मेरे साथ छल किया तो मैं भी तुम्हारे साथ छल करूं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसकी टिप्पणी में बताते हैं कि साधारणतया व्यक्ति के साथ जब छल किया जाता है तो शटो शाट्यम, अगर आपके साथ चतुराई करी गई तो आप भी कुछ चतुराई से जवाब दो, है ना? आजकल की दुनिया में ऐसा ही होता है। तो लोग सोचते हैं कि किसी में विश्वास मत करो भैया, फंस जाओगे। और इधर तो बलि महाराज के जो गुरु थे शुक्राचार्य, उन्होंने साफ साफ बता दिया था कि ये लेने वाले सब तुम्हारा हड़प लेंगे। तुम बलि, तुम कुछ के कहीं के भी नहीं रहोगे, तुम्हारा सब कुछ हड़प लिया जाएगा। ये वामन देव नहीं है, ये तो विष्णु हैं, सब ले लेंगे तुम्हारा। तो बलि महाराज बोले अरे गुरु का तो उद्देश्य यही होना चाहिए कि सब कुछ विष्णु को अर्पित कर पाए शिष्य, और ये मुझे बोल रहे कि विष्णु को सब कुछ अर्पित मत करो। गुरुदेव हरे कृष्णा, आप सब आपकी बात नहीं सुनेंगे अभी। तो उन्होंने ऐसा भी बड़ा त्याग किया। उन्होंने बोला था कि अगर तुमने मेरा बात नहीं माना तो तुम्हारे को मेरा आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तो गुरु की बात का अवहेलना करना बहुत बड़ी चीज़ है।
लेकिन जब उनके पास ऐसी परीक्षा का समय आया कि गुरु भी गलत बात बता रहे हैं, तब उन्होंने गुरु का त्याग किया, क्योंकि वो सिद्धांतिक रूप से जानते हैं कि गुरु को विष्णु के समर्पण में हमारे को प्रेरित करना चाहिए। तो वो नहीं करने को बोल रहे हैं, तो इसका मतलब गुरु गलत है। और गुरु की अवहेलना करके उन्होंने विष्णु को पूरा अपना जीवन समर्पित किया। बोले कि आप लीजिए 3 कदम, ये मेरा कर्तव्य है, 3 कदम लीजिए, आप लीजिए। और उन्होंने जब लिया तो सब कुछ ले लिया उनसे, और फिर बंदी भी बना लिया। फिर भी उन्होंने ये नहीं बोला अरे आपके लिए मैंने गुरु को ऐसा किया, हाँ, आपके लिए सब कुछ त्याग दिया, फिर आप ऐसा मेरे साथ अभी तीसरे कदम की बात कर रहे हैं और बंदी भी बना रहे हैं, ये क्या बात है। तो ये भक्त का लक्षण है, शुद्ध भक्ति का लक्षण है। शुद्ध बलि महाराज की गणना आत्मनिवेदन के लिए करी जाती है, सब कुछ न्यौछावर कर देगा भगवान की सेवा में। आत्मनिवेदन, तो आत्मनिवेदन जब करता है तो व्यक्ति के अंदर अहंकार भी नहीं होता। तो जो तीसरा कदम था भगवान ने किस पे रखा, उनके सर के ऊपर रखा। तो सर के ऊपर रखना उसका प्रतीक है कि मेरा जो अस्तित्व है वो भी आपको न्यौछावर है। तो जब हम भगवान को कुछ देते हैं तो वो अपने आप में एक अहंकार का लक्षण है, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि हम दे रहे हैं। एक तरीके से एक अहंकार हुआ। जैसे कि कभी कभी लोग ब्रह्मचारी या सन्यासी बनते हैं तो वो बोलते कि हमने बड़ा त्याग किया। एक ब्रह्मचारी के पिताजी आए थे तो वो बोले कि तुमने सब कुछ छोड़ दिया भगवान के लिए, तुम तो बहुत बड़े वैरागी हो गए। तो ब्रह्मचारी बोला कि नहीं नहीं पिताजी, मेरे से बड़े वैरागी तो आप हैं, क्योंकि आपने तो भगवान को ही छोड़ दिया। भगवान को छोड़ना बड़ा वैराग्य है, आपने भगवान को ही छोड़ दिया तो आप बहुत बड़े वैरागी हैं। और हम जब भगवान की सेवा में कुछ देते हैं, अगर देते समय हम सोचे कि हम बहुत बड़े हैं, तो वो हम बड़े नहीं हुए, हम तो हमारे अंदर वही अहंकार रह गया है। हमने वस्तु को छोड़ा है, लेकिन वस्तु के ऊपर अपना जो स्वामित्व है उसको नहीं छोड़ा है। एक राजा रहे थे भर्तृहरि करके। तो भर्तृहरि जी ने एक बार, भर्तृहरि राजा की तरफ सेवा कर रहे थे, फिर उन्होंने वैराग्य लिया और चले जंगल की तरफ। तो जब जंगल जा रहे थे, उनके एक और रिश्तेदार थे, वो भी राजा थे, उन्होंने भी उस समय वैराग्य की गति प्राप्त करी थी। तो दोनों जंगल की ओर अलग अलग जा रहे थे। एक तालाब के तरफ आए तो उन्होंने स्नान करने का सोचा। तो जब उन्होंने स्नान करने का सोचा तो भर्तृहरि ने अपना जो झोला था, झोला समझते हैं ना, बैग था, उसको एक पेड़ की डाली पे अटका दिया। तो उसके बाद उसी डाली पे उन्होंने जो दूसरे जो उनके रिश्तेदार थे वो दूसरी तरफ से आ रहे थे, तो उन्होंने भी उसी डाली पे अटकाया झोला। तो जब भर्तृहरि बाहर आते हैं नहा के, तो बोलते अरे ये डाली मेरी है, तुमने कैसे इसके ऊपर अटकाया, ये तो मेरी डाली है, तुम्हारे को दूसरी डाली लेनी चाहिए। बोले अरे ये डाली के ऊपर क्या बात हो गई, तुम्हारे को डाली के ऊपर अहंकार है। तो ऐसा दोनों झगड़ा करने लगे, अरे डाली क्या, तुम दोनों झगड़ा कर रहे थे। तो पास में से एक वृद्ध माता जा रही थी, तो दोनों बहुत झगड़ा कर रहे थे। तो माता को देख के बोले देखिए माता, इसने डाली, मेरी डाली के ऊपर अपना जो गमछा लटका दिया और इसने झोला लटका दिया, ऐसे दोनों झगड़ा कर रहे। तो वो माता बोली अरे देखो क्या जमाना आ गया है, अरे तुम्हारे को पता है एक वो भर्तृहरि है राजा, उसने पूरा राज्य त्याग दिया है, और एक और वो एक राजा, दूसरे राजा का नाम याद नहीं आ रहा, उसने भी अपना राज्य त्याग दिया, और तुम लोग एक डाली के ऊपर झगड़ा कर। वो दोनों ने अपना मुंह छुपाया, दोनों के दोनों बोले भैया हम ही वही लोग हैं। तो आसमान से गिरा खजूर पे अटका है ना, तो पूरा राज्य त्याग दिया, लेकिन आसक्ति नहीं गई।
एक ऐसी कहानी आती है, एक बार एक राजा सब कुछ छोड़ के तपस्या करने के लिए जा रहा था, बोल रहा था कि मैंने सब वैराग्य हो गया मेरे। तो उनकी जो धर्म पत्नी थी वो बहुत ही संत जैसी थी, बहुत उनका आध्यात्मिक प्रगति था। तो वो जानती थी कि इसको वास्तविक वैराग्य आया नहीं है। तो वो भी वहाँ पे जंगल में जाके उनको किसी तरह उन्होंने कष्ट दिया। तो जब कष्ट दिया तो वो तुरंत बोले, अरे तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ? अरे मैं वहाँ का राजा हूँ, तुम मेरे को ऐसा दे रहे हो कष्ट। तो वो सारा अपना गणना करने लगा कि कौन हूँ मैं, ये हूँ, वो हूँ, ये हूँ, वो हूँ ना? तो फिर वो अपना घूंघट उठा के बोले, अगर तुम्हारे को इतना ही, वहीं पे तुमने राज्य छोड़ दिया लेकिन राजगद्दी नहीं मन से छोड़ी है। तो जब हम भगवान को जीवन अर्पित करते हैं उसका मतलब है कि भगवान पुरुष हैं और हम प्रकृति हैं। भगवान ही वास्तविक भोक्ता हैं और भगवान के भोग के लिए ये सारा संसार है और भगवान की भोग के लिए हम भी हैं। भूमिरापो नलवायु खम्मनो बुद्धिरेवचा अहंकार इत्यम में भिन्न प्रकृति अष्टदा। तो सारी जो ये वस्तुएं हैं, भूमिरापो अनल वायु खम, मन बुद्धि अहंकार, ये सब जो है ये भगवान की भिन्न में मेरी ये शक्तियाँ हैं। तो अगर हम इनको भगवान को अर्पित करते हैं, तेरा तुझको अर्पण, है ना? जैसे गंगा का जल लेके हम गंगा को अर्पित करते हैं, है ना? तो गंगा के जल में एक भी बूंद बढ़ता है क्या? गंगा के नदी में एक भी बूंद एक्स्ट्रा डाला गया हमने? अरे गंगा से ही उठा के गंगा को अर्पित किया। इसमें हमने क्या किया? तो हम अपनी तरफ से कुछ दे ही नहीं सकते भगवान को। फिर भी जब हम गंगा का जल गंगा को ही चढ़ाते हैं, अपने हृदय की श्रद्धा को, अपने हृदय के भाव को कि हम आपको कुछ अर्पित करना चाहते हैं, उसको अर्पित करते हैं। लेकिन अगर उसी में अहंकार आ जाए तो वो भी अर्पित नहीं हो पाता, है ना? क्योंकि हम उसमें भी भोग करने की भाव ले रहे हैं कि हमने इतना अर्पित कर दिया, है ना? अभी गंगा का जल लेते हुए बोले, देखो हमने कितना जल दिया तुमको, कुछ भी नहीं दिया। उसी तरह सब भगवान ने ही हमको दिया है। जितना हमारे पास ये योग्यताएं हैं, अभी मैं कुछ आपको बोल पा रहा हूँ प्रवचन में, एक क्षण में भगवान मेरी बुद्धि को विस्मित करके खत्म कर सकते हैं और मैं बोलूँगा क्या क्या चल रहा है यहाँ पे, कौन हूँ मैं, है? एक क्षण में मेरी मृत्यु हो सकती है। मैं यहीं पे मच्छर की तरह बैठा हूँ, और मच्छर की तरह बैठा हूँ तो बोले भाग जा मच्छर, है? या कुत्ता बन गया तो भौ भौ कर रहा हूँ और आप लोग पिटाई करके भगा दो मुझे, तो मेरी क्या योग्यता? लेकिन भगवान और गुरु की कृपा है कि बैठ के प्रवचन दे रहे हैं भागवतम के ऊपर, अमल पुराण के ऊपर। तो जितनी योग्यताएं हैं हमारी, जितना बल है हमारे अंदर, बलम बलवतामस्मि, बुद्धि बुद्धिमं बुद्धिमतामस्मि, ये सब भगवान से आया है। तो ये भगवान की ही खुशी के लिए जाना चाहिए। एक बहुत सुंदर उदाहरण में सुन रहा था श्रीमान गुड़ाकेश प्रभु से। वैदिक संस्कृति में राजा होते थे तो कभी कभी जब किसान वगैरह थोड़े गरीब होते थे तो उनको भूमि दान देते थे। भूमि दान का क्या अर्थ होता था कि वो भूमि देते थे जिसके ऊपर वो खेती कर पाए, और जैसे वो खेती करते थे उसमें से जो फसल आती थी तो वो पूरा का पूरा फसल आके राजा को देते थे, और राजा उसमें से उनके लिए, उनके जीवन निर्वाह के लिए, जीवन पालन के लिए कुछ दे देते थे। तो ऐसे जो जिसकी जमीन है उसको देने का है। उसी तरह जो जमीन का एक और शब्द होता है क्षेत्र, क्षेत्र क्षेत्र देते, भूमि दान दिया तो ऐसे क्षेत्र दिया, उधर उसको फसल उगाने को मौका मिला। उसी तरह एक क्षेत्र होता है, इस शरीर को भी क्षेत्र बोला गया। तो ये क्षेत्र किसने दिया है हमको? भगवान ने दिया है। तो ये क्षेत्र भगवान ने दिया है, तो इससे जो भी फसल उगती है वो किसको जानी चाहिए? भगवान को। वो ही राजा हैं, पूरे सृष्टि के राजा हैं भगवान, और उनको पूरी फसल जानी चाहिए, और हमारे पालन के लिए थोड़ा थोड़ा वो दे देना। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिता मावृता कस्य सुखदत्। यहाँ पे जितना भी जगह है, सब कुछ जो भी है, वस्तुएं हैं और जीवात्मा है, सब भगवान की भोग के लिए बने हैं, और हमारे लिए जो भी भगवान ने छोड़ा है थोड़ा पालन पोषण के लिए, उसको ही भोग करके बाकी सब भगवान को देना चाहिए। तो
वास्तविकता में भगवान को कोई दान नहीं दे सकता। बलि महाराज ने जो तीनों लोगों को भगवान को अर्पित किया, वो उसी के समान है जैसे किसी के हाथ में गंगा जल है, वो गंगा जल उस भगवान को, गंगा को अर्पित किया। तो उसमें अगर अहंकार आ जाए तो बलि महाराज में एक अहंकार था, अरे हम तो त्रिलोकपति हैं, हम आपको जमीन देंगे। तो भगवान वो त्रिलोकपति के जो अहंकार था उसको पूरा क्षीण कर देना चाहते, तुम कौन त्रिलोकपति हो। तो भगवान और उनकी परीक्षा लेना चाहते थे जिससे उनकी भक्ति का गुणगान हो। तो जब उनके साथ ऐसा छल किया भगवान ने, तो बलि महाराज ने इतने प्रेम पूर्वक अपने आप को भी न्यौछावर कर दिया, क्योंकि भूमिरापो अनल वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इतियम में ये तो भिन्न प्रकृति है। और उसके बाद जो दूसरी अपरस्त अन्यम, उसके बाद कौन सी प्रकृति, पर प्रकृति आती है, वो हम सब जीवात्मा है। ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। तो हम सब जीवात्मा अभी भगवान की ही शक्ति हैं, लेकिन हम उनसे अभी दूर जा चुके हैं और हम भी भगवान की सेवा के लिए बने। देखिए, हम पर प्रकृति हैं और उसके नीचे अपर प्रकृति है जो भूमिरापन हो। तो ये भिन्न प्रकृति, ये पर प्रकृति और उसके ऊपर पुरुष। तो पर प्रकृति और अपर प्रकृति दोनों भगवान के भोग के लिए बने। लेकिन जब पर प्रकृति भगवान को भूल जाती है तो सोचती है कि ये मेरे भोग के लिए बना है, क्योंकि ये इसको कंट्रोल कर सकता है। जैसे हम ये माइक बनाए हैं, हारमोनियम बनाए हैं, तो हम भौतिक पदार्थों का शोषण कर सकते हैं, भौतिक पदार्थों को के अंदर बदलाव ला सकते हैं, हमारे अंदर नियंत्रण करने की शक्ति है। लेकिन उस नियंत्रण को भगवान की सेवा में लगाने का सेवा हमारे को दिया गया है। इस जगत में हमारी ये स्थिति है, जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य। हम अच्छा भोजन बना सकते हैं। यहाँ पे बंगाल में तो बांग्लादेश में ऐसा व्यंजन, हमारे नवचंद्र प्रभु ऐसे व्यंजन बना के खिला रहे, हमने कभी खाए नहीं। यहाँ पे बहुत सुंदर संस्कृति है जिसके अंदर इतने सारे तरीके के व्यंजन बनाते हैं, लेकिन साधारणतया लोग उस व्यंजन को अपने भोग के लिए यूज करते। तो व्यंजन बनाने की शक्ति, व्यंजन बनाने का पदार्थ, सब कुछ किसने दिया? भगवान ने दिया। उसको अर्पित किसको करना है? भगवान को। लेकिन जब उसको भूल जाते हैं, भगवान से विमुख हो जाते हैं, तो फिर लोग सोचते हैं कि हम अपने भोग को करेंगे। अरे हम भगवान भोग करें, भगवान चाहेंगे कि हम ये गरीबों को बांटें, मानव सेवा करेंगे। लेकिन वास्तविकता में हमारे को भगवान की सेवा करने में सबको लगाना है और खुद को भी लगाना है। तो जब हम खुद को भी भगवान की सेवा में लगाते हैं तो भी कुछ गर्व नहीं आना चाहिए। कभी कभी भक्त को अपनी भक्ति पे गर्व हो जाता है कि सभी देवी देवताओं में भगवान से बढ़कर कौन, और आपके भक्तों में हमसे बढ़कर कौन, है ना। उसको गर्व हो जाता है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, देखो इतना सब त्याग किया है, इतनी सेवा करता हूँ। तो भगवान वो भी नहीं चाहते, इसलिए भगवान को तीसरा जो कदम रखा है अहंकार के ऊपर रखा है कि हम उसका एक मिथ्या अहंकार भी ना हो कि हमने कुछ भगवान को दिया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं चिल्लाऊं क्या? जोर से बोलूं? हरे कृष्णा, चलेगा? सुनाई दे रहा है ना? तो तीसरा कदम भगवान को रखने का अवसर देना बहुत ज़रूरी है अपनी भक्ति में, तभी भक्ति रस का पूरा आस्वादन कर पाएंगे। अगर जब हम भक्ति में चीज़ों को बस अर्पित करते हैं या व्यंजन अर्पित कर रहे हैं, वस्तु अर्पित कर रहे हैं, बहुत प्रचार कर रहे हैं, इसका मतलब लोगों को अर्पित कर रहे हैं, लेकिन खुद को अर्पित नहीं किया तो वो तीसरा कदम नहीं रख पाए हैं भगवान अभी। लेकिन अगर खुद को अर्पित कर दिया, मतलब कि हम बोल रहे हैं भगवान मैं आपका हूँ, तत्सुखित्व सुखित्वम, ये सिद्धांत बताते हैं आचार्यगण। तत्सुखित्व सुखित्वम का मतलब है आपकी खुशी में मेरी खुशी, मैं और कुछ नहीं चाहता आपसे। भक्ति के
बदलाव में के बदले में मैं आपसे कुछ भी नहीं अपेक्षा करता। ये कुछ लोग मुक्ति की अपेक्षा करते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पे उनको त्रिलोकपति से हटा के अभी सुतल लोक दिया है भगवान ने, लेकिन ये उनकी अपेक्षा नहीं है। ऐसा नहीं कि वो सोच रहे चलो भगवान की ऐसे सेवा कर देते तो सुतल लोक दे देंगे। उनके हृदय में कुछ भी ऐसा भाव नहीं, पूरा न्यौछावर किया। तो कई लोग तो भगवान की सेवा करते हुए यहीं की चीज़ें मांगते हैं, जैसे लोग बोलते हैं तन धन सब, है ना, क्या तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा, ना तेरा तुझको अर्पण, ना ऐसा बोलते हैं। और फिर बोलते हैं सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हाँ, तो लोग क्या करते हैं, भगवान को अर्पित करके बाद में भोग की इच्छा करते हैं। इस जगत का ही कुछ चाहते हैं। कभी कभी भक्त भी बोलता है अरे मैंने इतना भक्ति किया, मुझे नौकरी क्यों नहीं मिली, हाँ? मुझे मेरी शादी क्यों नहीं हो पा रही। हाँ? तो भगवान नौकरी इधर नहीं देना चाह रहे। भगवान किधर देना चाह रहे हैं नौकरी? वृंदावन में, गोलोक वृंदावन में देंगे नौकरी। यहाँ की नौकरी लेके फिर यहीं पे रह जाएंगे। तो भगवान इधर की नौकरी छोकरी ये सब नहीं देने चाह रहे हैं। भगवान भक्ति देना चाह रहे हैं उनको, है ना। तो जो व्यक्ति धनम जनम सुंदरिम भगवान से मांगता है, भगवान बोलते क्या भाई, करोड़पति के पास आया और 2 पैसा मांग के चला गया ना, बहुत बड़ा इंसल्ट हो गया भगवान को। भगवान बोल रहे हैं मैं तुम्हें भक्ति देने को तैयार हूँ, और वो जाके देखिए भगवान बांसुरी बजा रहे हैं ना, भगवान बांसुरी बजाते हैं, राधा रानी बाजू में हैं, दोनों साथ में मिलके बोलते हैं कि बेटा आजा मेरे घर, हम तुम्हारे को अच्छे से पालेंगे पोसेंगे। हम बोलते नहीं, हम अपनी लीला ही कर रहे हैं यहाँ पे, आप कुछ दे दीजिए, हमारी लीला में थोड़ी कमी है, आप ये सब दे के जाइए यहाँ पे। तो भगवान को ऑर्डर सप्लायर की तरह देखते हैं कई लोग। लेकिन उसके ऊपर लोग, कुछ लोग मुक्ति की इच्छा करते हैं, हाँ? कि भैया मोक्ष मिल जाए, बहुत परेशान हो इस जगत के अंदर। लेकिन भक्त को तो वो भी नहीं चाहिए। सारिष्टि सालोक के सामीप्य, सारिष्टि सालोक के सामीप्य सारूप्यत्व में अप्यता दीयमाना न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जरा। अरे आप अगर मुझे मुक्ति भी देंगे लेकिन सेवा नहीं देंगे तो हरे कृष्ण जय राम जी की, आप अपनी मुक्ति अपने पास ही रखिए। कोई बोले अरे मुक्ति सायुज्य की बात नहीं कर रहा, वो तो एकत्वम हो गया, वो तो ठीक है, उसको बाजू करो। लेकिन सालोक्य सारिष्टि सामीप्य सारूप्य, ये तो अच्छी मुक्ति हुई, भगवान के साथ रहने को मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, सेवा पहले बात करो, सेवा की बात करो। अच्छा ठीक है, ये तो छोड़ो, ये भी, ये सारी चीज़ें भी नहीं चाहिए, तो फिर क्या चाहिए भैया? तुम्हारे को भक्ति का आनंद चाहिए क्या? नहीं नहीं, भक्ति का आनंद। दारुक जब भगवान को चामर कर रहे थे, भगवान को चामर करते समय क्या हुआ? आनंद आ रहा है बहुत, क्योंकि भगवान की सेवा कर रहे हैं तो आनंद आया जा रहा है। इतना आनंद आ रहा है, भगवान की सेवा करने का मौका मिल गया मुझे, हरे कृष्ण। वो उनका आनंद से मन पूरा प्रफुल्लित हो गया, और आनंद विभोर होके उनके आंखों से अश्रु धारा हो रही है, पूरा सागर की तरह टक 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 टक। तो इतना आंसू आ रहा है कि पंखा नहीं हो पा रहा है ठीक से। तो वो बोले कि भगवान मुझे ये आनंद नहीं चाहिए, मुझे सेवा करने दो। मतलब कि सेवा करने से जो आनंद आता है उसको भी भक्त नकार देता अगर वो सेवा नहीं होने देता तो। इसका मतलब उसको क्या चाहिए? सिर्फ भगवान की सेवा ही चाहिए। सिर्फ भगवान खुश हो जाए मुझसे, भगवान की खुशी में अपनी खुशी, तत्सुखित्व सुखित्व। आप खुश हैं ना, बस। ये नहीं कि मैं खुश हो जाऊं, ये खुशी नहीं। कभी कभी लोग बोलते हैं कि भगवान को खुश करेंगे तो हम संतुष्ट होंगे, इसलिए हमें भक्ति करना चाहिए। ऐसा नहीं है। एक्चुअली भक्त का जब पूरा निस्वार्थ भाव आ जाता है तो वो अपनी संतुष्टि सोचता भी नहीं है। जैसे साधारणतया जो प्रेम इस भौतिक जगत का होता है, माँ का प्रेम सबसे निस्वार्थ माना जाता है उसमें। हाँ? तो उस निस्वार्थ प्रेम में भी अभी जैसे मैं अगर घर जाता हूँ तो मेरी माँ कुछ व्यंजन बनाती हैं मेरे लिए, जो मेरे पसंदीदा आइटम हैं,
लेकिन ये नहीं सोचती कि आज मैं ये बनाऊंगी, फिर उसको खिलाऊंगी, फिर वो खुश होगा तो मैं खुश होंगी। ऐसा वो सोचती नहीं है। वो क्या सोचती है, मैं तो उसको खुश करना था। लेकिन उसको स्वाभाविक रूप से सुख का अनुभव होता है, क्योंकि उसमें प्रेम का भाव है। तो जो शुद्ध प्रेम है, ये तो शुद्ध प्रेम नहीं है, इस जगत का भौतिक प्रेम जो होता है, जो शुद्ध जो प्रेम है भगवान के साथ, उसमें भी निस्वार्थता का लक्षण इतना होता है कि स्वयं की सुख का अनुभूति भी उसके अंदर एक दूषण की तरह नहीं रह जाता। भगवान खुश हो जाए बस, कैसे मैं भगवान को खुश करूं, और उसके लिए भक्त अनेक कष्ट लेने को तैयार हो जाता है। जैसे माधवेंद्र पुरी जी को वृद्ध अवस्था में भगवान गोपाल ने क्या बोला, जाके पुरी से चंदन लेके आओ। अभी पूरी वृंदावन से पूरी कोई आजू बाजू नहीं है, ऐसा नहीं कि मथुरा जाने को बोल रहे हैं, पूरी धाम जाने को बोल रहे हैं। और वहाँ पे कोई ऐसा बैलगाड़ी नहीं उनके पास, कोई भूल जाओ, रेलगाड़ी तो भूल ही जाओ, पैदल जा रहे हैं। वृद्धावस्था है पूरी। वो तो अयाचक वृत्ति भी रखते थे, कुछ खाते नहीं, कुछ पीते नहीं, जो मिल गया मिल गया। ऐसे जो संत हैं वो चलना चालू हो गए, इतना परिश्रम। अभी आप सोचिए, अपने खाने के लिए इतना भी परिश्रम नहीं कि जाके भीख मांग लें। जो अगर भगवान की अपनी योजना से कोई दे के चला जाए वही लेंगे, इतना भी परिश्रम नहीं करना चाहते, इतना भजन में मगन है। हा? लेकिन भगवान के लिए चंदन लाने के लिए पूरी तक जाके चल के आएंगे, जहाँ से लेके आएंगे पूरी। और चंदन लाना आसान चीज़ नहीं है, उनको भगवान को ढकने के लिए बहुत किलो चंदन लाना था। और चंदन आपको पता है, उसके लिए तो लोग मार भी देते हैं चंदन को, दूसरे को कत्ल करके चंदन हड़प लेंगे। तो लेकिन माधवेंद्र पुरी वृद्ध अवस्था में चल के चंदन वापस लाने को तैयार थे। वो ये नहीं बोले अरे कोई सिपाही तो दो, कोई उठाने वाला तो दो, तब तो जाऊंगा। भगवान क्या ऐसा कुछ भी हुक्म चलाने आ गए बड़ा बड़ा। पहले मैं अच्छा खासा भजन कर रहा था, पहले बोले बाहर निकाल के रखो, अभी बोल रहे हैं चंदन लेके आओ, पता नहीं कल क्या बोलोगे। ये सब क्या पता नहीं, बढ़ाए जा रहे हो अपना सेवा। अरे पूरी तक चल के गए और पूरा चंदन लेके आ रहे हैं। तो भगवान की खुशी के लिए दुख ना गणिला, दुख का गिनती नहीं करते वो, कि कितना दुख होगा मुझे, कितना कष्ट होगा। यह ऐसी भक्ति से भगवान बड़ा खुश हो जाते हैं। जैसे बलि महाराज भी इधर इतना प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा कर रहे हैं, उनके अंदर कुछ भी अहंकार नहीं रहा, तो भगवान भी उनको पूरा दिल दे दिए। तो ये भगवान और भक्त के बीच का जो आदान प्रदान है, यही भागवतम का मूल विषय है। अगर आप देखिए भगवान कृष्ण ने प्रवेश कैसे किया है भागवतम के अंदर, कहाँ पे भागवतम में चालू होता है भगवान का, भगवान पहली बार कहाँ पे भूमिका दिखाते हैं अपनी, 7वें अध्याय में पहले स्कंद में। उधर क्या कर रहे हैं भगवान? भगवान अर्जुन का रथ चला रहे हैं। जब वो अश्वत्थामा को पकड़ने जा रहे हैं तो अर्जुन का रथ चला रहे हैं। और भगवत गीता में भी भगवान कैसे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, प्रवचनकर्ता की तरह नहीं। भगवान को सेनयो उभयो मध्य जाओ, थोड़ा बीच में लेके जाओ, नो ओ माधव थोड़ा बीच में लेके जाओ, थोड़ा रथ को बीच में लेके जाओ। तो भगवान देखिए, जो हीरो होता है, कभी मूवी के अंदर, आप मूवी तो नहीं देखते, आप सब भक्त हैं, लेकिन कोई मूवी होती है ना, तो उसमें हीरो का एंट्री कैसे करते हैं? हाँ, हीरो का एंट्री ऐसे नहीं कि ऐसे ही चलता हुआ आ गया, उसका थोड़ा सा अच्छे से कैमरा पहले नीचे के पैर टक 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 टक, फिर धीरे 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 उसका कैमरा पे ऐसा हीरो की तरह वो ऐसा आएगा, फिर लोग ओह अभी हीरो आया है ना। हाँ, तो जो हीरो होता है मूवी का, उसका थोड़ा बहुत ही एक स्पेशल तरीके से दर्शन दिखाया जाता है, जिससे लोग उसको समझ जाए ये हीरो है ना। और भगवान अपने दोनों मुख्य किताबों के अंदर, भगवत गीता और भागवतम की मुख्य किताबों में इंट्रोडक्शन अपना कैसा देते हैं, कैसे अपना सबसे पहला झलक दिखाते हैं, रथ चला रहे हैं, टुक 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 टुक, ड्राइवर बन के जा रहे हैं। अरे सारथी तो कोई भी सारथी बनते हैं नो, तो टांगा चलाने वाले को आप कितना आदर देंगे। भगवान सारथी बनने को रेडी हैं, बनने को ही रेडी नहीं, अपनी सबसे बड़ी किताब के अंदर वैसा ही अपना प्रस्तुति करना चाहिए, ये मेरा जीवन भैया,
मैं भक्तों का नौकर हूँ, समझ जाओ भैया, मैं तो भक्तों का नौकर हूँ। यही मेरा सबसे बड़ा इंट्रोडक्शन है। मेरा क्या क्वालिफिकेशन है, मैं भक्तों का नौकर हूँ, चाकर, जो भी बोलो। मैं भगवान बोल रहे हैं मेरे को भक्तों ने अपनी नौकरी में रखा हुआ है, इसलिए मेरा जीवन चल रहा है अच्छा। ब्रज जन रंजना, भक्तों को, ब्रज जन जो हैं उनको खुश करने में मेरा जीवन जाता है। अभी कोई बोले भगवान ये पूरे त्रिलोक नाथ ही नहीं, सृष्टि के नाथ हैं और ऊपर दिव्य जगत के भी नाथ हैं, वो क्या कर रहे हैं उधर? हुक्म चला रहे हैं क्या? नहीं, नौकरी कर रहे हैं, भक्तों की नौकरी कर रहे हैं। तो ये भगवान का प्रेम है। यद्यपि ईश्वर तुम्हें परम स्वतंत्र, तथापि स्वभावे होए प्रेम परतंत्र। भले ही भगवान परम स्वराट भगवान है, तीनों लोग उनको सलाम करते हैं, महाविष्णु भी सलाम करते हैं, सब लोग उनको सलाम करते हैं, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? मेरे को भक्त तुम अपना दास बना लो। जब नंद महाराज अपनी पादुकाएं लाने को बोलते हैं तो भगवान कृष्ण किसी तरह उठा के किसी तरह लेके आते हैं पादुका। भगवान को उसमें खूब आनंद आता है भक्त की सेवा करने में, क्योंकि भगवान अपनी भगवत्ता में कुछ रखते नहीं, आनंद नहीं लेते, उनको भगवत्ता से कुछ मतलब नहीं है, उनको तो भक्त की सेवा करने में आनंद आता है। भक्त की सेवा में उनको जो आनंद आता है वो भगवत्ता में जब सलाम करते हैं सब। जब देवी देवता थे, जब गोवर्धन लीला हुई उसके बाद देवी देवता आके, वो ब्रह्मा जी शिव जी सब आके भगवान की पूजा करने लगे। अरे बहुत बढ़िया किया। और गोप लोग पीछे से देख रहे थे छुप छुप के, अरे ये कौन आ गया? एक 4 मुंह वाला आया है, एक 5 मुंह वाला आ गया, कौन कौन आके मेरे कृष्ण की सेवा कर रहा है ऐसे? अरे बड़ा मजेदार लग रहा है। उनको समझ नहीं आ रहा है ये भगवान की तरह सेवा कर रहे हैं, उनको लग रहा है अरे कृष्ण तुम्हारे को बड़ा पंखा बढ़िया बढ़िया कर रहे हैं। और फिर वो बाद में एक्चुअली कृष्ण भगवान को बहुत मज़ा नहीं आ रहा है, ये सब लोग पूजा वूजा कर रहे हैं, वो उनको मज़ा नहीं आ रहा। फिर वो सब चले गए, वो सब चामर वगैरह वहीं छोड़ दिए। फिर गोप लोग आए, अरे अभी हम करेंगे, कृष्ण हरि तो उसमें भगवान को बड़ा आनंद आ रहा है। और देवी देवता भी उनका प्रेम में सेवा देख के बिल्कुल शर्मा जाते हैं कि ऐसा प्रेम तो हमारे अंदर नहीं है। तो भगवान प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। भक्त वश्यता, 2 चीज़ें बोली जाती हैं भगवान के बारे में, भक्त वात्सल्यता, भक्त वश्यता। भक्त वात्सल्यता मतलब भगवान भक्त की रक्षा करते हैं, भक्त का पालन करते हैं। जैसे यहाँ पे गजेंद्र का चित्र बनाया गया है, इसको भक्त वात्सल्यता बोलेंगे। कि भगवान की वात्सल्यता ऐसी है, जब गजेंद्र का संकट की घड़ी आई तो भगवान वो तुरंत वो कमल का फूल उठा के भगवान को अर्पित करते हुए बोले, नारायण अखिल गिरो भगवान नमस्ते। वो जोर से चिल्लाए, जब चिल्लाए तो भगवान विष्णु वहाँ पे वैकुंठ लोक में थे। और वैकुंठ लोक में शास्त्रों में एक श्लोक आता है, जय श्री श्री राधा माधव जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गौर निताई की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, ये पद्यावली में बताया है इन्होंने हमारे रूप गोस्वामी पाद ने। तो वो श्लोक क्या बताता है कि भगवान वैकुंठ के अंदर डाइस खेल, डाइस को क्या बोलते हैं, डाइस समझते हैं, वो पासा, लक्ष्मी जी के साथ डाइस खेल रहे थे। तो लक्ष्मी जी हार गई, तो लक्ष्मी जी हार गई और जा रही हैं, वो स्वीकार नहीं करना चाहती अपना हार कि वो हार गई हैं, तो वो इसलिए जा रही हैं वहाँ से। तो भगवान उनको पकड़ लेते हैं साड़ी से, आप जा नहीं सकते ऐसे। और उसी समय गजेंद्र पुकारते हैं, क्या पुकारते हैं, नारायण अखिल गुरु। अभी भगवान के पास समय नहीं है, तुरंत भागना चाहते हैं वहाँ पे। तो क्या करते हैं, वो भाग जाते हैं और साड़ी का हाथ में लेके घूम रहे हैं। वो पीछे पीछे लक्ष्मी जा रही है, कहाँ जा रहे हो भाई, मुझे लेके क्यों जा रहे हो भाई। इतना तेजी से भागते हैं, उनके पास टाइम नहीं है छोड़ने का भी नो। और वो भाग रहे हैं और फिर एक नौकर आता है, अरे चप्पल तो पहन लीजिए, पादुका तो लेके जाइए, टाइम नहीं है हमारे पास। और पैदल ही निकलना चाहते तो गरुड़ जी बोलते हैं, अरे मैं वाहन हूँ तुम्हारा, मेरे को तो लेके जाओ। तो गरुड़ जी के लेने का भी टाइम नहीं है, तो वो नीचे घुस जाते भगवान के, भगवान मैं आ गया, मैं भी हूँ। और वो बहुत स्लो जा रहे थे, गरुड़ जी बहुत हल्का, बहुत धीरे जा रहे थे। वो बोले इतना स्लो गाड़ी, बेकार है गाड़ी। तो गरुड़ जी को हाथ में पकड़ के
नो, खुद ही भगवान निकल दिए वहाँ पे, नो। तो ऐसे भगवान यहाँ पे आए, नो, और फिर वहाँ पे पेश हो गए गरुड़ जी के साथ, हरे कृष्णा जय नो। तो भगवान को भक्त वत्सलता, जब भगवान को भक्त पुकारता है, जब द्रौपदी ने पुकारा, वो भी भक्त वत्सलता है कि भगवान उनकी रक्षा करने के लिए तुरंत द्वारका में बैठे थे, लेकिन इतना तुरंत वो इधर आ गए, वहाँ पे भोजन छोड़ दिए जो रुक्मिणी पेश कर रही थी, क्योंकि उनको अभी रक्षा करनी है अपनी। वो बोले जो द्रौपदी के जो अश्रु बहाए हैं, उसके लिए जो मेरी कृतज्ञता है उसको मैं कभी भी पूरा नहीं कर पाऊंगा, नो। तो वो ऐसी साड़ी पकड़ाते हैं उसको कि साड़ी है, वो दुशासन बेचारा खींचते रह जाता है, वो तो ये नाड़ी की साड़ी है या साड़ी की नारी है, नारी साड़ी निकले जा रही है, पता नहीं हो क्या रहा है। तो भगवान भक्त की रक्षा करते हैं हमेशा, ये भक्त वत्सलता है। लेकिन और ऊपर है भक्त वश्यता, ये भक्त के कंट्रोल में आ जाते हैं, नियंत्रण में आ जाते हैं भगवान। जैसे अर्जुन का सारथी बन गए, क्यों बन गए? क्योंकि मेरे को अर्जुन का नौकर बनना है, मुझे आनंद आता है। छुट्टी हो गई आपकी भी हो गई। 5 मिनट ले लो। ना बोल सकते प्रभु दास के जितना है, बहुत टाइम है ना, एकादशी नहीं, लेकिन भक्तों को जब भी करना होगा। तो भक्त वत्सलता में तो भगवान भक्त की सेवा करते हैं एक पिता की तरह या एक रक्षक की तरह। लेकिन भक्त वत्सलता में भगवान भक्त से कंट्रोल हो जाते हैं, इतना कंट्रोल हो जाते हैं कि भक्त की सेवा एक जैसे अभी जब भगवान को दामोदर लीला में, दामोदर लीला में यशोदा मैया बांधने आई, तो यशोदा मैया बांधने की कोशिश कर रही है, लेकिन डोरी पूरी नहीं पड़ रही, कितना भी डोरी बांधो, क्योंकि भगवान है ना। अरे भगवान महाविष्णु का साइज कितना है, उनके इन रोम रोम से एक एक संसार निकलता है, एक एक ब्रह्मांड निकल रहा है, उनको कैसे बांध सकते हैं? कितनी डोरी लगेगी ऐसे व्यक्ति को बांधने के लिए, है ना। तो भगवान गोपाल भी वही हैं, लेकिन अभी वो अपने प्रेममय रूप में हैं, स्वरूप में हैं, तो उनको बांध कौन सकता है। लेकिन जब भगवान ने देखा कि मेरी माता इतना परिश्रम कर रही हैं मेरे लिए, स्विन मात्र वो बोल रही हैं कि आपका पूरा पसीना सुबह से लेकर शाम तक वो ऐसे परिश्रम कर रही थी कि मैं तो बांध के ही छोड़ूंगी। तो जब भक्त निर्णय ले लेता है कि मैं भगवान की सेवा करके ही छोड़ूंगा, तब भगवान भी उसको कृपा दे देते हैं। कृपया सीत स्वबंधना, वो खुद ही कृपा दे के बंध जाते हैं। उनके जो ऐश्वर्य की जितनी शक्तियाँ हैं वो कृपा शक्ति के अधीन हो जाती है। तो भगवान कृपा दे के खुद ही भक्त के वश्यता में आ जाते हैं। एक बार भगवान गए थे, खेल रहे थे, तो खेल रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है, और रोहिणी बुलाने आ गई। रोहिणी देवी बुला रही हैं कि चलो चलो खाने का समय हो गया है। तो खाने का समय हुआ तो आना चाहिए, लेकिन वो आ नहीं रहे। मुझे खेलने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो वो मना नहीं पाई, वो बोली यशोदा तुम जाके मरो। तो यशोदा बोली ए कान्हा आते हो या मारूं तुम्हारे को। और वो बोल रही है आजा बेटा, कान्हा कान्हा आजा, प्रेम से मान नहीं रहा, फिर थोड़ा डांट फट करती हैं, अरे नंद महाराज वेट कर रहे हैं। और उधर से गोप लोग क्या बोल रहे हैं, गोप लोग बोल रहे हैं देखो कान्हा तुम हार रहे हो इसलिए छोड़ के जा रहे हो, आगे दोबारा से आए तो हम तुम्हारे को खेल में शामिल नहीं करेंगे। खाना बोलते फिर नहीं जाता है ना, अरे ऐसा फिर मेरा खेल छूट जाएगा। लेकिन मैया बोलती ये आना होगा, तुम्हारे खाना खाना है नहीं खाना है, आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हारे खाना होगा ना। तो ऐसे फिर भगवान जब यशोदा मैया डांटती हैं तो उसको स्वीकार करके चले जाते हैं ना। तो भगवान यशोदा मैया के वश में रहते हैं, वश में रहते हैं। अभी कौन भगवान को डांट सकता है ना, कौन भगवान को बांध सकता है? कोई वैकुंठ लोक में देखेगा यशोदा की लीला भगवान के साथ, तो बेचारे परेशान हो जाएंगे, नहीं ऐसा कैसे कर रहे हैं, अरे ये भगवान है, इनको डांट नहीं सकते आप ना? तो इसीलिए वो एक बहुत सुंदर श्लोक आता है ना, मेरे को 1 मिनट याद नहीं आ रहा, मैं आपको यहाँ से पढ़ के बता दूँ। गोप्या ददे त्वे कृतागसिदाम तावत्
यातेदृशाशलकलाञ्जन सम्भ्रमाक्षं पत्रं निनीय भव भावनचित्तस्य स मां विमोहयति भी अपि यद् विवेति। ये कुंती महारानी बोल रही हैं कि अरे आपसे तो भय भी भयभीत होता है, लेकिन आप वो गोपी मतलब यशोदा मैया को, उसके भय से भाग रहे हैं। ये दृश्य देख के मैं बड़ा विमोहित हो जाती हूँ, क्योंकि कुंती महारानी उनको एक ऐश्वर्य भाव में देख रही हैं, तो उनको समझ नहीं आ रहा कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो भगवान का जो रस है दिव्य गोलोक वृंदावन में बहुत ही पराकाष्ठा पे है, जिसमें भगवान भक्त के वश में रहते हैं। इधर भी हम देखते हैं बहुत सुंदर दर्शन आ रहा है कि भगवान अभी सुतर लोक में बलि महाराज को राज्य ही नहीं दिया है, उसके साथ भगवान उनके नौकर भी बन रहे हैं, उनके सैनिक बन के, उनके पहरेदार बन के रहने वाले हैं। तो वो पहरेदार बन के ही नहीं रहे, एक जो अगले वाले कैंटो में आएगा, अगले स्कंद में आएगा, जब दुर्वासा मुनि जाते हैं विष्णु जी के पास कि बचाइए मुझे, अभी आपका चक्र पीछे लगा हुआ है, तो बोले नो अहम भक्ता पराधीनो, मेरे पास कुछ कंट्रोल नहीं है भैया, कंट्रोल अम्बरीश के पास है, ये जो चक्र है ये मेरे पास कंट्रोल नहीं। अरे चक्र आपका है या अम्बरीश का है? नहीं, चक्र मेरा है, लेकिन मेरा हृदय अम्बरीश के पास है। बोले ऐसा कैसे? बोले अरे मैं भक्त के प्रेम से बंधा हुआ हूँ, अगर उसकी इच्छा होगी तो मैं करूँगा। तो दुर्वासा मुनि का सर चकरा जाता है, अरे वो एक छोटा सा राजा है, मैं इतना बड़ा तपस्वी दुर्वासा मुनि, आप उसको इतना ज़्यादा क्यों भाव दे रहे हैं? तो भगवान उनको भक्त की महिमा बताते हैं। तो एक बहुत सुंदर किताब लिखी है परम पूज्य शिवराम महाराज ने, साधव हृदय मह्यम, उसके अंदर इतना सुंदर विश्लेषण आता है इस सब का। तो उधर भगवान एक चीज़ बताते हैं, वो बोलते हैं देखो तुम्हें याद है दुर्वासा, एक बार द्वारका के ऊपर 10 राक्षसों ने अटैक कर दिया था, आक्रमण किया था। तो जब आक्रमण किया तो तुम प्रतिनिधि की तरह और कुछ लोगों को लेके आए थे यहीं पे सुतर लोक पे, जहाँ पे मैं नौकरी कर रहा हूँ। किसकी? बलि महाराज की। तुम आए थे और मुझे को पूछ रहे थे कि भाई आ जाओ, थोड़ा सेव कुछ द्वारका की रक्षा कर दीजिए भगवान। तो तब मैंने क्या बोला था तुम्हारे को, याद है तुम्हारे को? तो वो बोले नहीं, बताइए। पराधीनोस्मि विपेंद्र भक्ति कृतोस्मि नन्यता बलेरादेशकारी च दैत्येंद्र वश गोह्यम। बोले पराधीनोस्मि विपेंद्र, अरे मैं तो पराधीन हूँ, मैं अपना खुद से थोड़ी आ सकता हूँ द्वारका। मेरे मालिक से पूछो, कौन है मालिक भैया? मालिक बलि महाराज, हाँ है ना। भक्ति कृतोस्मि नान्यता, मैं भक्ति, इसकी भक्ति से बंधा हुआ हूँ, मेरे पास कुछ अपना नहीं रहा है, मुझे इससे बांध रखा है भक्ति से। तो ये मालिक मुझे छोड़ेंगे तो मैं तुम्हारे पास आता हूँ। बलेर आदेशकारी चा, मैं बलि महाराज का आदेशकारी हूँ, उनके आदेश का पालन करता हूँ। दैत्येंद्र वश, ये जो दैत्यों का इंद्र है या राजा है उसके वश में हूँ। तो अभी करना क्या पड़ेगा भाई? तस्मात् प्रार्थ्य विपेंद्र, अभी विपेंद्र ओ ब्राह्मणा, तुम उनके पास जाके प्रार्थना करो। दैत्यम वैरोचनम बलिम, विरोचन का जो पुत्र है बलि, उनके पास जाके प्रार्थना करो। अस्य आदेशात, अगर वो आदेश करेंगे, अस्य आदेशात करिष्यामि यत् अभीष्टम तवादुना, आपकी जो भी इच्छा होगी मैं पूरी करूंगा अगर उनका आदेश होगा। मालिक से पूछो भैया, नौकर को क्यों बोल रहे हो? और बलि महाराज के पास जाते हैं कौन? दुर्वासा मुनि, कि भाई देखो, छोड़ो भाई, भगवान को छोड़ दो थोड़ा पहरेदारी से, वहाँ पे द्वारका में संकट आया हुआ है। तो बलि महाराज क्या बोलते हैं, देखो मुझे इन 2 चरण कमलों से इतनी आसक्ति है, मैं एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ूंगा। जो होना है होने दो द्वारका को। द्वारका गई बाढ़ में, मुझे तो वही इन चरण कमलों से आसक्ति है, मैं नहीं छोड़ने वाला। तो उन्होंने ऐसा बोल दिया, तो वो वापिस आके भगवान के पास बोले, देखो भाई अब मालिक ने नहीं छोड़ा तो मैं नहीं आ सकता, तो नहीं गया। तो ये है भगवान का प्रेम, भक्त के हृदय में भगवान का
भगवान का हृदय भक्त के हृदय से जुड़ा हुआ है। भक्त जब कृपा देगा तो भगवान की कृपा मिलेगी। इसलिए ये सब जो पूरा हमने सुना, इससे हमारे को जानना चाहिए कि हमारे को भक्तों को संतुष्ट करना है अपने जीवन में। अगर हम भक्तों को संतुष्ट कर देंगे, भक्त बोलेंगे भगवान ये इतना सुंदर भक्त है, ओ किसको बोला, ये पता है क्या इसने क्या क्या किया है, अरे पूरे तुम्हें पता नहीं है इसने क्या क्या अपने पिछले जन्मों में किया। नहीं नहीं मैं बोल रहा हूँ ये अच्छा भक्त, तुम बोल रहे हो क्या, ठीक है तो फिर कृपा देता हूँ। तो भक्तों की कृपा चाहिए हमको, और भक्तों को हमने अगर खुश कर दिया तो भगवान हमसे खुश हो जाएंगे। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद। परम मुझे गिरिराज महाराज इसके लिए बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। जब वो डोनेशन कलेक्शन के लिए जाते थे यहाँ पे बॉम्बे में, तो एक बार वो एक बड़े रईसपति के पास गए, लेकिन बाहर ही वो जो चौकीदार वगैरह थे उन्होंने बोले कौन आ रहा है, बाहर निकलो। नहीं अपॉइंटमेंट है क्या, नहीं जाओ। तो वो बाहर जा रहे थे, तो बाहर जो गार्डन था, बाग के अंदर उनका बच्चा खेल रहा था बड़े व्यक्ति का। तो उन्होंने क्या किया, राधा रास बिहारी जी का बहुत अच्छा महाप्रसाद उसको बच्चे को खिलाया। तो वो खाया तो वाह, उसका मन बड़ा प्रफुल्लित हो गया। बोला क्या, हरे कृष्णा प्रभु अंकल आप बहुत अच्छे हैं। तो बड़ा खुश हो गया। वापस आया घर में तो बड़ा खुश था। पिताजी बोले बेटा इतना खुश कैसे दिख रहा है, वो हरे कृष्णा अंकल आए थे, उन्होंने मुझे महाप्रसाद दिया, बहुत अच्छा था। तो वो बड़े खुश हो गए कि बहुत खुश है मेरा बेटा आज। अगली बार गिरिराज महाराज ने फ़ोन पे अपॉइंटमेंट लेने के लिए फ़ोन किया, तो बेटे ने फ़ोन उठाया। तो बेटा बोला, वो बोले हरे कृष्णा अंकल कब आ रहे हैं दोबारा से। बोले आपके पिताजी से अपॉइंटमेंट चाहिए। नहीं अपॉइंटमेंट वगैरह कुछ नहीं, आप आ जाइए मैं बता दूंगा पिताजी को। तो वो तुरंत फिर वो आ गए, और फिर अंदर सीधा गाड़ी, कोई सब नौकर चाकर सलाम साहब सलाम साहब सलाम साहब, सीधा गाड़ी अंदर गया ना। और गाड़ी अंदर गया, फिर गिरिराज महाराज जी को अंदर लेके गए, और वो मालिक मिलने के लिए आते हैं। बोलते मैं आपसे बहुत खुश हूँ, आपकी वजह से मेरा बेटा जो बहुत मायूस घूमता था आज बहुत खुश हो गया नो, पिछले कुछ दिनों से बहुत खुश है, क्योंकि आपसे कुछ उसकी भेंट ऐसी हुई कि उसको बहुत अच्छा लगने लग गया जीवन। तो मैं आपसे बहुत खुश हूँ, मैं आपके लिए कुछ चेक पे देना चाहता हूँ। उन्होंने तुरंत 20,000 रुपये टड़ाटक, उस समय 20,000 बहुत होता था, ये 1970 की 70 से 80 की वाली बात है नो। तो 20,000 रुपये कटाकट चेक बांध के दे दिया महाराज को। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं, देखिए वो जो बड़ा व्यक्ति था उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल था भाई, इधर के चौकीदारी बाहर निकाल देते, लेकिन उनके बेटे को खुश किया तो तुरंत एंट्री मिल गया। एंट्री नहीं मिला, खुश भी कर दिया, वो उनको अलग से खुश करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो बेटा खुश हुआ तो पिता भी खुश हो गया। उसी तरह अगर भक्त को खुश कर दिया तो भगवान को खुश कर दिया। तो प्रभुपाद की यहाँ पे बड़ी इच्छा है, यहाँ पे प्रचार हो। आप सब बहुत सुंदर तरीके से प्रामाणिक भक्ति कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। ये बड़ा मुश्किल जगह है एक तरीके से, कि अनेक मुसलमान लोग भी हैं, लेकिन आपके अंदर इतनी निष्ठा है, इतना प्रामाणिकता है कि आप इतना प्रेम पूर्वक भगवान की यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं, भक्ति में लगे हुए हैं। तो भगवान आपसे बहुत खुश हैं। हम बहुत कृतज्ञ हैं कि हमारे को ऐसा उदाहरण भगवान, मतलब हमारे को आप जैसे भक्तों से संपर्क में लाए, कुछ सेवा करने का मौका दे रहे हैं। क्योंकि आप जैसे भक्तों की भक्ति में अगर हम किसी तरह आपको खुश कर पाएँ, तो आप खुश हो गए तो भगवान बोलेंगे ठीक है तुम्हारा अभी थोड़ा नाम दर्ज किया जाता है, क्योंकि तुमने मेरे भक्तों को खुश किया। तो आप सब अच्छे भक्त हैं, हमारे को सेवा का मौका दे रहे हैं। तो ये हम इसके लिए कुछ हम ऋणी हैं, हम कर्जदार हैं। आपने हमारे को सेवा का मौका दिया, और अगर आप हमसे खुश हो जाएं तो हमारा कुछ ऊपर नाम चला जाएगा। तो हम बहुत आपके ऋणी हैं इसके लिए। और एक और इसमें बहुत सुंदर भाव आता है, उसको बस 2 मिनट में बोल के विराम देता हूँ। देखिए, बलि से पहले सब कुछ छीन लिया गया, और फिर सब कुछ बहुत बड़ा ऐश्वर्य दे भी दिया, लेकिन बलि महाराज कभी हमारे वो कभी विस्मित नहीं हुए, दोनों चीज़ें भक्ति भाव से लगे रहे। उसी तरह भगवान प्रभुपाद बोलते हैं कि भगवान ने मेरी भी 2 बार परीक्षा ली।
एक बार सब कुछ ले लिया, उनका फैक्ट्री भी चला गया, परिवार ने भी साथ नहीं दिया, और हार्ट अटैक भी आए, और गुरु भाई वगैरह ने भी सबने उनका तिरस्कार किया, कितने मतलब कुछ साथ नहीं दिया, ऐसे कुछ भी साथ नहीं दिया, अकेले थे। इतना कि जब अमेरिका गए तो एक रूम में रुके हुए थे, टाइपराइटर वगैरह सब था, तो वो एक डेविड करके एक शराबी भी था, वो आके उनके ऊपर अटैक किया, मारने जा रहा था, तो उनको पूरा सड़क पे आ गए। वो 70 साल की उम्र में एक अलग जगह पे जहाँ पे कोई और व्यक्ति अपना नहीं है, बिल्कुल सड़क पे थे वो। तो ऐसी परिस्थिति में भी उन्होंने भक्ति को बिल्कुल नहीं छोड़ा, उन्होंने दृढ़ पूर्वक भगवान की सेवा करी, और बाद में भगवान ने इतना दिया कि पूरे जगत में उनका नाम हो जाए, श्रील प्रभुपाद का नाम हो जाए। उसमें भी भगवान की सेवा में ही लगे रहे। उन्होंने ये नहीं सोचा अरे मेरे गुरु ने तो पाश्चात्य देश में अंग्रेजी भाषा में करने को बोला था, अब मैंने न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को में मंदिर खोल दिया, अभी आराम करता हूँ, तुम मेरा पैर दबाओ, तुम मेरे हाथ दबाओ। नहीं, वो तो लगे रहे निरंतर, आखिरी क्षण तक तात्पर्य देते रहे। नींद भूल गए, खाना भूल गए, लेकिन तात्पर्य देना नहीं भूले। मृत्यु की शैया के ऊपर भी तात्पर्य देते देते अपना जीवन त्याग दिया। ऐसे भक्त से भगवान क्यों नहीं प्रसन्न होंगे। तो हमारे श्रील प्रभुपाद ने भगवान को पूरी तरह खुश किया, दोनों परिस्थिति, विपद या संपद। तो हमारे को भी अपने जीवन में भक्ति को नहीं छोड़ना है, चाहे विपद आए या संपद आए। और इस भक्ति को, ऐसी भक्ति करने के लिए भगवान बता रहे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, विपदे संपदे ताहा ठाकुर समभावे दिने दिने वृद्धि होगा नामेरा प्रभाव। तो जैसे जैसे हम नाम का जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, धीरे धीरे हमारी भक्ति की वृद्धि होगी, हमारा हृदय भक्ति से पूरा आप्लावित हो जाएगा। और ऐसी भक्ति से जब आप्लावित हो जाता है तो दुख को गिनता नहीं व्यक्ति, और भगवान के यश गान में ही उसका पूरा मन रमा रहता है। तो भगवान की खुशी के लिए वो कितना भी कष्ट उठा सकता है, और भगवान की खुशी में, भगवान के यशोगान में वो अपने किसी भी यशोगान में दिलचस्पी नहीं लेता। तो चाहे सुख आए या दुख आए, विपद आए संपद आए, उसमें से भक्ति भाव से ही भगवान की सेवा करता रहता है। तो ऐसे ही भक्ति की आशा करते हैं अपने जीवन में। हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि हम भी श्रील प्रभुपाद और उनके अनुयायी और आप सब भक्तों की सेवा में इसी तरह लगे रहें, ये जीवन इसी में न्यौछावर हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। आप सबके ध्यानपूर्वक श्रवण करने के लिए और हमारे को सेवा का मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रश्न 9:15 हो गया। भक्त लोग बोलेंगे भाई छोड़ दो।